चरणामृत की, संवेद गौर भक्त बिंद की, इताई गौर स्थानात प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All good session Hare Krishna, all good session Hare Krishna, all good session Hare Krishna, Guru Gaurang Hare Krishna, Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudire Nashta Prayasa Bhadresu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Soke Bhaktir Bhavati Neshtiki Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulangete Giri Jagripatamahang Bande Sri Guru Dinatarinam Sri Chaitanya Iswaram Paramananda Madhavam Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshunritam Jena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayangrapakadameham Dadati Sapadantikam Bande Ahang Sri Guru Sita Padakamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Twang Twang Sajivam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padanu Sagana Lalita Sri Sakanitam Nityananda Hangnami Sarvananda Prada Prabhu Harina Padadeva Avaduta Siramani Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayine Kolo Kalmasana Sayo Janavapate Nama Namo Havadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurate Se Namo Panchatatakam Krishna Bhakta Rupa Surupakam Bhakta Avatar Bhakta Khyang Namai Bhakta Saktikam Guruve Gaura Chandrayo Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusate Devi Bhagavatam class Vrindavana Banipate Jaya Shama Maule Sanaka Sanatana Sanatana Nada Dagpe Sanaka Sanatana Nada Dagpe Sarvajvilas Jugendra Pradme Piti Priyasang Nitarang Nirapadikame Nagendra Harayo Tiluchanayo Bhasmangaragaya Maheswarayo Nityai Sudaya Digambarayo Tasminakaraya Namah Shivaya Mancha Kalpatarya Kripasindu Pratana Pavana Vaishnavano Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namam Krishna Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Radha Govinda Goswami Nam Namaste Prabhupada Deve Gauravani Vacharini Vidasunyavadi Paschatya Desa Tarine Namam Krishna Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Dam Sarta Sivas Vanadaita Vada Krishna Samanda Vigana Pramada Jajjalla Pramadya Rupanavadasi Gaur Kuruna Sakti Vigraha Namaste Namaste Gauravani Simute Dinatani Panagu Dhavasdan Namo Guru Sakat Pranamba Sabda Bhakti Saktanandan Gauru Sakti Parupanagu Bride
नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वंगरूपाय सर्वानंदो विधायिने जंग्रजंद मनोवेत वेद कृत्य दुपायिन विरकातर जुहाव पुत्री तन्मयतया तरवने जतं सर्वं उदय मुनिमान तस्मि। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम सामना प्रभु धन्यवाद करूंगा जिन्हें ये साप्ताहिक जो भागवत कथा में आमंत्रित करके मेरे को इस कथा के सुनने के लिए सुजग प्रदान किए हैं। कलियुग में भगवान साक्षात वाणी के रूप में भागवतम पे प्रकट हैं और आज हम चर्चा करेंगे। सामग्राम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी ने अभी कनेक्ट नहीं हुए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आज शिव जी को चर्चा करने विषय आपको कहे होंगे ना। प्रभु जी कोई बात नहीं हुई प्रभु जी। तो क्यों डिस्कस हुआ था मेरे साथ है काल शिवरात्रि है ना। तो शिव जी तत्व शिव तत्व के बारे में मैंने कहा था कि उनको बोलने के लिए अवश्य 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही बात हुआ था। जी प्रभु जी हरि बोल। तो शिव तत्व चर्चा करेंगे। जी प्रभु। तो आप सभी धन्यवाद हैं जो इस भगवान शिव के जो वैष्णवान तथा शंभु दोनों तत्व की निहितता है। शिव जी भगवत तत्व भी है, वैष्णव तत्व भी है। इनके पर चर्चा क्योंकि शिवरात्रि काल है स्मार्त मत में, परसों वैष्णव मत में है, तो इस तत्व के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म संहिता क्योंकि संबंध ज्ञान के बिना किसी के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। तो ब्रह्म संहिता हम सबको ब्रह्मा जी सभी देवी देवता और जीव भगवान सबकी संबंध तत्व ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में व्यक्त किए हैं। शिव जी पर एक श्लोक व्यक्त किए हैं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। क्षीरं जथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहि तत् पृथकेस्तु हेतु जसंभूतामिर तथा संपेत कार्यान् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो जैसे खटाइया जमाने के संयोग से दही बदल जाता है किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से ही वह न तो समान होता है और न ही पृथक होता है, उसी प्रकार संसार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं कि शिव जी की उत्पत्ति शिव जी की स्थिति दूध से दही बनना, दूध से दही बनना की स्थिति जो है, हाँ भगवान को दूध माना जाए तो दही कौन है? शिव जी है। जो दूध से दही बनता जामुन देकर, हाँ दही की जामुन मिला से दूध से क्या दही बन जाता है। तो उसी प्रकार शंभु या शिव जी जो है ब्रह्मा जी व्यक्त कर रहे हैं कि जो है शंभु जो है क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार दूध से दही बने बाद शिव जी की स्थिति दही के समान है और भगवान कृष्ण विष्णु की स्थिति क्या है? दूध के समान है। इसी प्रकार संबंध से संबंधित है। इसलिए शास्त्र ये व्यक्त करता है कि शिव जी की स्थिति जो है एक तो भगवत तत्व में, क्योंकि गुणावतार का 6 अवतार के अंदर जो है गुणावतार आता है, सत्य-गुण रजगुण तम गुण, ये गुणावतार में भी शिव जी आते हैं, भगवत तत्व में आते हैं। और शास्त्र ये व्यक्त करता है कि वैष्णवान यथा शंभु, निनत गंगा देवानं अच्युतं तथा वैष्णवान सा शंभु शास्त्रणमिदं तथा
ये द्वादश स्कंद भागवत में श्लोक है, जैसे गंगा निम्न कर बहते हैं, देवता में वो पवित्र करने वाली है, और देवता में अच्युत जैसे हैं, भगवान कृष्ण जैसे हैं। और वैष्णवान तथा शंभु, वैष्णव जितने वैष्णव सभी वैष्णव श्रेष्ठता कौन है? शिव जी है। और पुराणम इदं तथा, पुराणों में जितने पुराण है में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। इस पर श्रेष्ठता व्यक्त करते हुए शिव जी की स्थिति जो है वैष्णवान यथा शंभु, शिव जी वैष्णव श्रेष्ठ है। इसीलिए शिव जी की जो स्थिति है व शिव जी की जो स्थान है वैष्णव जी में है, वो शिव जी जो है सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वैष्णव में उनकी ख्याति है। ऐसे रसस्य भगवान रस दी हैं वैष्णवान तथा शंभु। तो इसलिए शिव जी की स्थिति को हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि वैष्णव कृपा के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे नाम अपराध में, दूसरा नाम अपराध में जो है देवी देवता को भगवान समान मानना और उसे भिन्न मानना। भगवान की बराबरी नहीं है देवी देवता, और उनसे भी अभिन्न भी नहीं है। इसी प्रकार स्थिति के अनुसार ये दिखा जाता है कि शिव जी जो है भगवान से अभिन्न भी है और भिन्नता भी है। इसलिए शिव जी स्थिति के आधार पर हमें चर्चा कर रहे हैं, जो उनके चरित्र के अनुसार बहुत जगह बहुत चरित्र, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, बहुत सारे पुराण है उनके पर, शिव जी के पर। और एक मनवंतर भी है शिव जी के नाम पर, तामस मनवंतर। तो इसी प्रकार शिव जी की स्थिति जो है वैष्णव दृष्टि, वैष्णव को वैष्णव दृष्टि शिव जी को सम्मान करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य भागवतम में ये कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, बलराम शिव प्रति प्रीत नहीं करे, भक्ताधम शास्त्र कहे ये सब जोने रे। बलराम शिव प्रति प्रीत नहीं करे। बलराम जी और शिव जी को कोई वैष्णव बनना चाहता है और वो बलराम जी को और शिव जी को सम्मान नहीं करता, वो उनको स्नेह नहीं करता है। भक्ताधम, भक्त में अधम माना जाता है, भक्त जानने के लायक नहीं है, भक्त बनने के लायक नहीं है। भक्ताधम शास्त्र का ये सब जने रे, ये सब व्यक्ति को भक्त हो सकता है, भक्त जैसे हैं, किंतु भक्त में अधम में गिना जाए। इसीलिए जो है ये भक्ताधम जो है, इसीलिए क्योंकि बलराम और शिव जी को सम्मान नहीं करता, उनको क्या नहीं करता, उनको रेस्पेक्ट नहीं करता, उनको आदर नहीं करता है, भक्ताधम माना जाता है। तो इसलिए हमें किस दृष्टि से सम्मान करने, कैसे सम्मान करें, क्योंकि इनकी स्थिति दोनों ओर है, ये गुणावतार भी और वैष्णव भी है। तो इस कारण से इनकी तत्व थोड़ा कंफ्यूज है। इन तत्व को क्लियरली ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भगवान से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं। जैसा दूध को और दूध नहीं का दही कैसे बनेगी? दूध तो है ना, और दूध से जामुन डालने के बाद मीन्स ये कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण विष्णु सृष्टि तत्व में शिव जी स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान सृष्टि चक्र में शिव जी की स्थिति अद्वितीय। शिव जी जो है जैव धर्म का आधार पर शिव जी के द्वारा ही भौतिक ब्रह्मांड में भगवान क्या करते हैं, जीवों को प्रेरित करते हैं, इस ब्रह्मांड में प्रवेश कराते हैं। और सीधा भगवान जो है दृष्टिपात माया पर नहीं करते हैं, जो मोह तत्व पर नहीं करते, शिव जी के दृष्टि से दृष्टिपात कराते हैं, और इससे ये संसार की सृष्टि होता है। ब्रह्म संहिता इसका पाठ कर सकते, ब्रह्म संहिता इसके तत्व बहुत अच्छा से वर्णन किया भक्तिराम ठाकुर ने।
टीका दिए भक्तन ठाकुर ने, अच्छा टीका दिए भक्तन ठाकुर रोहन संहिता में। तो इसी प्रकार हमें इनके कैरेक्टर पर हमें चर्चा करें तो इनकी कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। और शिव जी की जो हमें स्वरूप वर्णन सुनते हैं, नागेंद्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्य सुधाय दिगंबराय, जो ये शिव जी की जो स्वरूप है, शिव जी पद्म पुराण आधार पर शिव जी जो है इसी प्रकार हाँ भस्म लेपन बा ये सब बाद में किए हैं। त्रिलोचन बा इनकी जो उधर पुंडक धारण करना चाहिए, वैष्णव होता उधर पुंडक धारण करना चाहिए, वो त्रिपंड धारण करते हैं, इस प्रकार वेशभूषा में रहते हैं। ये सभी शिव जी भगवान कृष्ण को बड़े करने के लिए पहनते हैं, क्योंकि ये सभी जानते शिव जी के पास सब चले जाते हैं सभी, क्योंकि प्रभुपाद भी परपट चौथे स्कंद भागवत में इनके बारे में बहुत चर्चा की है प्रभुपाद ने। जब सती शिव के प्रसंग है, हाँ दक्ष यज्ञ नाश की भगवान शिव ने, तो वो प्रसंग में शिव जी कहते हैं, प्रभुपाद कहते परपट में, शिव जी ऐसे हैं कि सभी पर करुणा करने वाले, सभी जीव कर करुणा विभिन्न जो है उनकी स्थिति जो है भूत पिशाच से लेकर देवता तक सबको करुणा करने वाले। किसी को ये हाँ असत्संग होता नहीं इनकी, ना किसी प्रति उनकी देश है, सभी को संग देते हैं और सभी की मंगल चिंता करते हैं। इसलिए शिव शब्द का अर्थ है मंगलमय, जो सर्वदा मंगलमय है उनका नाम है शिव। उनका नाम क्या है? शिव है। तो इसलिए उनके कुछ प्रसंग हमें चर्चा करने की, तो बहुत सारे लीला चरित्र बहुत सारे हैं, तो उनके प्रसंग में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमें तो एक दो चार स्टोरी ऐसे मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, थोड़ा सा समय देना मेरे को। तो आप सभी नंदगांव गए होंगे, हाँ नंदीश्वर पहाड़, जहां भगवान कृष्ण की नंदे महल है, नंद महाराज की महल है, मंदिर जो है वो मंदिर जब जिस पहाड़ पर खड़ा है वो पहाड़ का नाम नंदीश्वर पहाड़ है। शिव जी भगवान को सेवा के लिए वो पहाड़ में स्थित है, नंदीश्वर पहाड़। और आप कृष्ण लीला के आधार पर देख सकते हैं, ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि जब भगवान नंद महाराज की महल में, नंद गांव में लाला के रूप में नंद महाराज के आंगन में छोटे बच्चे की तरह पालनी में खेल रहे थे, तो शिव जी को भगवान के बाल स्वरूप दर्शन करने बड़े लोभ हुआ, और इतने लोभ हुआ कि उन्हें कैलाश छोड़कर सीधा पधार गए। कहां पर? नंदगांव। नंदगांव पहुंचकर उन्हें नंद महारानी के आंगन में पहुंचकर उन्हें नंद महारानी को, क्योंकि जोगी वेश में आए थे, जोगी राज है, शिव जी जोगी वेश में रहते हैं, उनकी स्वरूप जोगी वेश में है। क्योंकि ये जोगी वेश इसलिए धारण किए हैं क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार, क्योंकि जब ये आशुतोष हुए, करुणामय हुए, कि जैसे हमें वैष्णव उद्धर पूर्ण धारण करते हैं और जैसे सात्विक जीवन था, सभी इस प्रकार शिव जी का स्थिति थी पद्म पुराण आधार पर, किंतु उनकी जो भगवत भक्ति में तल्लीनता कारण से और जीव की करुणा करने कारण से इस वेश को धारण किया, और भगवान के कहने पर ये त्रिपंड को धारण किए, जो उद्धर पूर्ण धारण शिव जी करते थे। किंतु एक बार भगवान ने उनको कहे कि देखो सभी को वरदान दे देते हो, अब आशुतोष हो,
सबके ऊपर करुणा कर देते हो, किंतु सभी करुणा से जो दुष्ट जीवात्मा है उन भी करुणा हो जाता है उनके ऊपर, और ऐसा करुणा हो जाता है, इससे क्या हो जाता है कि संसार में उत्पात मच जाता है। और जो मैं जीव भक्तों को सुरक्षा करने के लिए, जीव को सुरक्षा करने के लिए जो व्यवस्था बनाता हूं, तो आपकी करुणा कारण से वो हो नहीं पाता। इसीलिए आप क्या करो, ये उद्धव पुंडक जो धारण करते हो, आपको सबको राक्षस भी उद्धव पुंडक धारण कर लेते, क्योंकि ये तिलक जो है हरि, इसको हरि मंदिर कहते हैं। जो उद्धव पुंडक तिलक धारण करते हैं, ये भगवान हरि धारण करते हैं, कृष्ण धारण करते उद्धव पुंडक को। जो जीव धारण करता है वो वैष्णव माना जाता है। तो इसीलिए जब राक्षस लोग इस प्रकार उद्धव पुंडक धारण कर लेते हैं शिव जी की तरह, शिव जी को अनुकरण करते हुए, तो भगवान जो सुदर्शन चक्र धारण किए हैं, किसके लिए? जीव को सुरक्षा देने के लिए, भक्तों को सुरक्षा देने के लिए। जब उनके साथ उनकी लड़ाई होता, वो सुदर्शन चलते नहीं, सुदर्शन को मारते नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो हरि भक्त है ना, ये तो हरि भक्त है, तो इसीलिए वो अस्त्र काम नहीं करता। इसीलिए शिव जी को भगवान ने कहे, देखो तुमको बेस चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो विरक्त है शिव जी, परम विरक्त। हाँ, ऐसा ग्रस्त कोई नहीं होगा जिनके बरगद के नीचे रहता होगा, ऐसा विरक्त शिव जी है। तो भगवान के कहने पर उनने त्रिपुंड को छोड़े, ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड धारण किए, ऊर्ध्वपुंड को छोड़े, और ये जो अंगराग बा ये सब जो है उनने धारण किए हैं, इसकी चर्चा में थोड़ा सा करूंगा। किंतु पहले मैं नंदीश्वर महादेव, है ना, नंदीश्वर महादेव की जो है, जो पहाड़ बने और कैसे शिव जी आए और जुगी वेश में आए, जैसे शिव जी की स्वरूप है। आप गले में नाग धारण के, सांप धारण करते हैं, अर्धचंद्र सिर पर धारण करते हैं, गंगा सिर पर धारण करते हैं, जटाजूट धारण करते हैं, त्रिपंड, मस्त त्रिपंड त्रिलोचन है, 3 आंख वाले हैं, और इस प्रकार विभत्स स्वरूप है। हाँ, इतने विभत्स स्वरूप, कोई नहीं कहेगा कि ये ईश्वर है, वैष्णव है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम ईश्वर जानते भगवान कृष्ण है, कितने सुंदर कमनीय स्वरूप है, और वैष्णव देखते कितने सात्विकता होती है, और ये ऐसे स्वरूप हैं, कोई इनका ईश्वर कहेगा ना कोई भक्त कहेगा, कि दोनों स्वरूप को छिपाते हुए ये ईश्वर भी कुटी में आते हैं और वैष्णव कुटी में आते हैं। इसलिए वैष्णव क्रिया मता विज्ञ न बुझा है। वैष्णव की जो क्रिया है, क्रियाशीलता कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, ये सभी जीव के लिए बोधगम्य नहीं है, सभी समझ नहीं पाते। इसलिए शिव जी के तत्व बड़े गहराई तत्व है। तो इसी जुगिराज वेश में आए और जटाजूट धारण करते, भस्म राग को लेपन करते हुए, और बाघ खाल को वस्त्र पहनते हुए, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल धारण करते हुए, इस प्रकार जो है भगवान शिव के स्वरूप है। तो जाचना करने के लिए आए किसके पास? नंद महाराज के आंगन में। और क्या जाचना थी उनकी, क्या प्रार्थना थी? कि अलेख निरंजन, जो सबको लक्षित नहीं है, सबको दृष्टिगोचर नहीं है, और सबकी मन को रंजन करने वाले वो कृष्णचंद्र, उसको देखने आए हैं। और वही शब्द उच्चारण अलेख निरंजन करके जुगी तत्वेश में थे, और उन्हें संबोधित किए, उच्चारण किए, जैसे हम कहते हरे कृष्णा, इस प्रकार उनके अलेख निरंजन, इस प्रकार शब्द उच्चारण करते हुए जब जसोदा महारानी को उन्हें बुलाए, जसोदा महारानी आई, देखी जुगी खड़ा है, इतने विभत्स स्वरूप, ऐसे स्वरूप कभी देखा नहीं, सांप लपलपा रहा है, जो है जटाजूट बेस है, इतने भस्म लगा हुआ है ना, भाग खाल पहने, इतने ऐसे स्थिति में खुद भाई कर रही थी, कौन जुगी आ गया। और शिवजी ये दिव्य स्वरूप, जो उनकी दिव्य स्वरूप से जसोदा महारानी देखे, कितनी भाग्यशाली है जसोदा, जिनकी पालकी में पूर्ण पुरुष भगवान कृष्णचंद्र खेल रहे हैं।
तो जसोदा माँ ने कहा हाँ जोगी बताओ क्या चाहिए आपको। हाँ, तो वो कुछ अनाज देना चाहती थी, गेहूं धान की बात कुछ ऐसा अनाज देना चाहती थी। जोगी आया कुछ हाँ भीख मांगने के लिए। उन्हें कहे नहीं मेरे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मैं तो आपके लाला को दर्शन करने आया हूं। आपकी लाला जो आपकी पालकी में खेल रहे हैं उनको दर्शन करने आया हूं, मैं कैलाश से आया हूं। तो जसोदा कहती नहीं नहीं नहीं, अरे आपकी जटाजुट वेश धारण कर ये क्या विकट स्वरूप है आपकी। ऐसा स्वरूप तो साधारण जीव के लिए माने ये कैसे स्वरूप है। मैं देख के भय कर रहा हूं और मेरे लाला को तो आप भयानक लगोगे। इसलिए नहीं नहीं, चाहे कुछ दना दे दो और कुछ दे दो, हीरा जावर दे दो, किंतु हे जुगिराज मैं लाला को कभी दर्शन नहीं कराऊंगा आपकी, क्योंकि मेरा लाला भय कर जाएगा आपको देखकर। तो शिव जी निराश हो गए, इतना दूर से आए थे भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए। निराश होकर शिव जी चले गए। वहीं से 1 किलोमीटर दूर आशेश्वर महादेव आस लगा के बैठे कि कब भगवान की कृपा होगा, मैं इनके स्वरूप को देखूंगा। इसलिए जाके भजन करने लगे, अपने भजन में मस्त हो गए। इधर जैसे शिव जी नंद महारानी के आंगन से यात्रा कर जाने लगे, ऐसे ही कृष्णन रोने लगे। इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, बहुत देर रोते रहे। स्वयं जसोदा महारानी, उनके जो सहेली और जो काम करने वाले जितने उनकी सभी थे, सभी ने प्रयास किए कि कृष्ण को रिझा जाए, कृष्ण को समझाया जाए, कृष्ण को किसी ना किसी रूप में हाँ उसकी रोना बंद किया जाए। किंतु शिव जी तो उधर आस लगाए बैठे थे कि एक बार दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए। प्रभु मैं इतना दूर से आया हूँ आपकी दरबार पर, आपको देखने के आया हूँ। इतने स्नेह से, इतना प्रेम से पुकार रहे थे शिव जी, जप कर रहे थे भगवान नाम को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी जप कर रहे थे भगवान नाम की, और इधर कृष्ण खूब रोए जा रहे थे। तो पूर्णमासी देवी जो वही नंदगांव में रहती थी, और पूर्णमासी जो है भगवान लीला में सहायता करती है, इनको जुगमाया भी कहते हैं। तो कृष्ण लीला में पूर्णमासी बनी है, जुगमाया है पूर्णमासी बनी है। तो पूर्णमासी देवी जो है वो क्या करती है, वो कहती है, जसोदा बड़े दुखी हो जाती है, मेरे लाला को क्या हो गया। तो पूछती है पूर्णमासी देवी क्या आपके घर में क्या हो, मैंने क्यों रो रहे लाला। कहते पता नहीं एक जोगी आया था और इतना विकट स्वरूप थी उसकी, मैं देख के भय कर रहा था, और वो चाह रहा था कि मैं मेरे लाला को दर्शन कराऊं उसको। जब से वो गया मैं इसको दिखाई दिया, कि मैं खुद भय करता कैसे लाला दर्शन कराऊं। और जब से वो हमारा ये आंगन से गया है, तब से लाला चिल्ले जा रहे, रो रहा है, और बंद ही नहीं हो रहा है। ओ हो पूर्णमासी समझ गई, अच्छा अच्छा अच्छा। वो जोगी को कहने लगी जैसे हमारे की निश्चित रूप से जोगी ने कुछ करके जादू टूना करके गया है, कुछ ही जादू टूना तो किया है उसने, जादू टूना तो कुछ करके गया है उसने। तो इसलिए वो पूर्णमासी कहती है कि वो जोगी को ले आओगे तो बेटा तेरा शांत हो जाएगा। तो जसोदा महारानी कहती है ठीक है, एक काम करो, वो ढूंढो जोगी को, ढूंढ के हाँ ले आओ, हो सकता है मेरा लाला ठीक हो जाए।
तो शिव जी आशीश्वर महादेव में अभी भी बैठे हैं, आश लगाए बैठे हैं, आशीष में आस लगाए बैठे हैं कि कब भगवान की कृपा उनका स्वरूप दर्शन करूं। इससे भी पता चलता है जो भक्त होते हैं भगवान को जबरदस्ती नहीं करते, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो। हाँ, जैसे भगवान कहते हैं आशिष्ट पादरतम पिनष्टमा मदर्शन मरमहता करतमा जथा तथा बा विधात लंपटो मत प्राण नाथ सैव न। चाहे मेरे गाढ़ालिंदन करके मेरे को दर्शन दे के संतुष्ट करो बा मेरे को दर्शन न देकर मरमात मार दो, आप ही तो मेरे पति हो, आप ही मेरे स्वामी हो। उसी प्रकार शिव जी उसी आस से बैठे कब स्वामी मेरे को दर्शन देंगे, मेरे प्रभु कब मेरे को दर्शन देंगे, उसी आस में बैठे हैं आशीश्वर महादेव के रूप में। तो जशोदा माँ के कहने पर उनकी सहचरी जुगमाया जो पूर्णमासी देवी वो सभी आए और क्या करने के लिए शिव जी के पास आए। और जशोदा माँ भी खुद आई, आके कही देखो जुगिराज, हाँ आप क्या कर दिया, आप जब से आए हो तब से मेरे लाला रोए जा रहे, आप आइए हमारे महल में। तो सुनते ही शिव जी तो चाह रहे थे एक बार दर्शन करें, दर्शन करने चाहते थे प्रत्यक्ष रूप में। ऐसे तो वो देख ही रहे थे भगवान को, सर्वत देखते हैं वैष्णवान यथा संभव, सर्वत दृष्टि है भगवत दृष्टि। और चाहते थे वो जो लीलामय जो कृष्ण आए लीला करने के लिए, बाल लीला कर रहे हैं उसको देखना चाहते थे, तो प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। इसीलिए वो पूर्णमासी और जसोदा माँ कहने पर वो आए। जैसे आए नंद महाराज की आंगन में, ऐसे कृष्ण बड़े रोना बंद हो गया, खिलखिल के हंसने लगे। और स्वयं शिव जी उनको दर्शन किए, प्रणाम किए। जसोदा रानी देखी क्या रे, हम लोग इतने प्रयास किए, ये लाला को संतुष्ट करने के लिए, उसको रोना बंद करने के लिए, किंतु ये जोगी क्या इसके पास जादूगरी है, आते ही खिलके हंसने लगा। उसके बाद जसोदा माँ ने उनको दर्शन कराते और भगवान शिव दर्शन करते हैं और मन प्रसन्नता से दर्शन करते थे। भगवान दर्शन मिली, आज सौभाग्य बाल स्वरूप दर्शन किए शिव जी। तो जाने चाहते थे दर्शन करके, क्योंकि रहना तो नहीं था। किंतु जसोदा माँ ने कहेगी हे जुगिराज आप कहाँ जा रहे, आप मत जाओ, क्योंकि मेरे लाला जब भी रोएगा ना आपको दर्शन करते शांत हो जाएगा, है ना। आप ऐसे जुगी हो, आपको देखते हुए खिल जाता है। इसलिए आप एक काम करो, यहीं विराजो। हाँ, आप नंद महाराज के आंगन में, वो जो नंदगांव में जो नंद महाराज के महल जो मंदिर है, उस मंदिर के पहले दर्शन करोगे जो नंदीश्वर महादेव, जाते ही गेट के बाएं ओर नंदीश्वर महादेव बैठे। वो शिव जी जो है, वो शिव जी स्वयं जब जाने लगे तो नंद महारानी रिक्वेस्ट की, जसोदा महारानी उनको प्रार्थना की कि आप यही विराजो। तो उन्हें कहा एक शर्त पर मैं ही विराजूंगा। और शर्त क्या था, वो शर्त यह था कि डेली आपकी लाला को जो आप स्नान करोगे वो स्नान जल मेरे पर चढ़ाना, और तोरे जो लाला जो खा के उच्चिष्ट छोड़ देगा उसको मेरे प्रदान करना। दो चीज के ऊपर लड़े, उन्हें इंपोर्टेंस दिए कि जो आपकी लाला स्नान करेगा, स्नान करने जो जल उनकी शरीर से अंग से निकला हुआ जल रहेगा, वो जल मेरे सिर पर डालना। और जो उच्चिष्ट वो कृष्ण छोड़ देंगे, लाला छोड़ देगा आपकी लाला, वो उच्चिष्ट मेरे को अर्पण करना। ये दो काम करोगे तो मैं आपकी आंगन में ही रहूंगा। नंदीश्वर महादेव अभी भी विराजते हैं, नंदीश्वर महादेव। तो जैसे हम कहे ये कोई बात है, ये तो आपको डेली दूंगा मैं। हाँ, तो इसी लोभ से वैष्णव कितने भगवान की महाप्रसाद
भगवान की स्नान जल जो है, अभिषेक जल जो है, चरणामृत जो है, उसको कितने लोभ रखते हैं। इस प्रकार शिव जी भी लोभ रखते हुए भगवान को बड़े करने के लिए, भगवान बड़े हैं, मैं छोटा हूं, उसी कारण से आस लगा के वहीं पर नंदीश्वर महादेव रूप में विराजते हैं। नंदीश्वर पहाड़, एक तो पहाड़ के रूप में है, एक शिवलिंग के रूप में है। उसी ये है भगवान शिव की भगवान कृष्ण के प्रति प्यार। और वो किस प्रकार सेवा कर रहे हैं? पहाड़ के रूप में सेवा कर रहे हैं, नंदीश्वर पहाड़ के रूप में। तो इसी प्रकार ये जस्ट मैं नंदा गांव की बात आप लोगों को प्रसंग में कहा। हाँ, और शिव जी 4 संप्रदाय आचार्य के अंदर एक शिव जी भी आचार्य है। हाँ, अत्तोकड़ भविष्यन्ति 4 संप्रदाय न, श्री ब्रह्म रुद्र का, श्री ब्रह्म रुद्र का, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जो कुमार संप्रदाय नाम से जानते हैं। वो शिव जी भी एक संप्रदाय के आचार्य हैं। जैसे शिव संप्रदाय लक्ष्मी आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी आचार्य, रुद्र संप्रदाय शिव जी आचार्य है, और 4 कुमार समय 4 कुमार आचार्य है। उसी प्रकार शिव जी भी ये वैष्णव संप्रदाय में आचार्य भी है, वैष्णवान तथा शंभु। और शिव जी की जो है चैतन्य से हम आपको कुछ सुने होंगे, जो जब भागवत ग्लोरिफिकेशन जो चल रहा था हमारा, तो भागवत ग्लोरिफिकेशन में शिव जी खुद कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भागवत जानने वाले कौन है? शिव जी श्लोक है, ये कहते हैं अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा भक्त्या भागवत गाहे न बधया न टिकया। शिव जी कहते हैं कि अहं व्यक्ति में भागवत पूरा जानता हूं कि भागवत करने में वो माहिर है। हाँ, वो ऐसे भागवत कथाकार कोई नहीं है। जिस सभा में 4 कुमार नारद जी बड़े बड़े मुनि जोगी सब बैठ के सुनते हैं, और ये निरंतर चलता है। और इतने नहीं, उस कथा में इतने विरक्त, इतने वैराग्य हैं कि शायद कोई ऐसे आचार्य नहीं होंगे, व कोई आचार्य होंगे नहीं, पता नहीं। शिव जैसे अपने गोदी में माया देवी पार्वती को बैठा कर भागवत कथा करें, और पूर्ण विरक्त 4 कुमार नारद जैसे महान विरक्त साधु बैठकर उस कथा को श्रवण करें। मैंने कहने मतलब यह है कि शिव जी इतने महान हैं कि वो स्त्री संग में भी स्त्री भी अपने गोदी में बैठा कर उनके शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इतने विरक्त हैं शिव जी। इसीलिए आप चित्र महाराज प्रसंग सुने होंगे। चित्र महाराज इसको देखकर चित्र महाराज उनकी 2 चीज किए। एक तो गुरु भाई थे, उनके थोड़ा सा मजाक किए, और दूसरा इनकी महानता व्याख्यान कर रहे थे, है ना। क्योंकि जो उनको मजाक इस पे कहे कि देखो देखो कितना बड़ा विरक्त है। हाँ, जिस सभा में 4 कुमार जैसे और नारद जैसे विरक्त ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेतर ब्रह्मचारी से बैठ के सुन रहे हैं उनके मुखारविंद से कथा, और दूसरी ओर अपने गोदी में पत्नी बैठा के सुना रहे। तो इस प्रकार की ग्लोरियस भी थी, और प्रकार क्रिटिसाइज भी, थोड़ा सा क्रिटिसाइज मीन्स एक प्रकार की मजाक भी कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि गुरु भाई थे। तो इसीलिए उनको शाप दिए पार्वती ने। उस प्रसंग सुनोगे तब पता चल जाएगा। शाप जी ने शाप दिए पार्वती ने कि तू शिव जी की स्थिति नहीं जानते हो, जबकि वो मजाक कर रहे थे, किंतु ये सहन नहीं हुआ। किसको? पार्वती को सहन नहीं हुआ।
कि शायद उसने जाके ये क्रिटिसाइज कर रहा है शिव जी को कि मैं उनके गुदी बैठा हूं, इसलिए पार्वती सहन नहीं हुआ, तुरंत पार्वती साप दे दिया। हाँ, तो राक्षस जोनि प्राप्त कर ले। किंतु शिव जी कहते हैं कि देखो विष्णु भक्ति कितनी निश्चलता है। शिव जी खुद कहते हैं पार्वती को, अरे तेरे को सहन नहीं हुआ तो साप दे दिया, किंतु जबकि प्रति साप में वो भी दे सकता था आपको, किंतु नहीं, विष्णु भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि वो किसी को प्रत्युत्तर नहीं करते, क्योंकि तुनादपि सुनिचना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना माना देना कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि इतने सहिष्णु होते हैं कि वो प्रत्युत्तर विपत्ति साफ देते नहीं, इसलिए वो महान है। शिव जी अपने बुखार में चित्र के तो महाराज को प्रशंसा कर रहे थे पार्वती के सामने, जब पार्वती कह रहे थे आप असहिष्णु हो, क्योंकि आप तो उसको जाने बिना साप दे दियो, किंतु वो भी जितने योग्य था आपको साप देने के लिए, किंतु उसने विष्णु भक्त होने के कारण से, भगवान भक्त होने के कारण से आपको कोई साप दिया नहीं। इसकी महानता है, ये विष्णु भक्तों की महानता है। और भागवत कथा में ये तल्लीनता प्राप्त करते, इतने तल्लीनता प्राप्त करते हैं कि हाँ, इनके मुख से, मुखार में से भागवत निकलता है। हाँ, वो कहते मैं जानता हूं भागवत को, हाँ बेटी मैं जानता हूं। सुख बेटी, सुखदेव जानते, क्यों? सुखदेव कैसे जान गए? सुखदेव जो है उनके स्वरूप क्या है? तोते के रूप में। किसके तोते थे? राधारानी के तोते। तो राधारानी के तोते थे, तो जब नित्य जगत को लीला करके जा रहे थे तो हाँ, वो तोता जो है राधारानी छोड़ के गई इस जगत में, वो गए, उनको छोड़ लेके गए नहीं, कि इनको जरा कुछ भागवत प्रचार करना था। तो जब वो चाहते साधु संग करने के लिए, कोई भक्त मिले जिसे सुना जाए भागवत कथा, भगवान की कथा सुना जाए, कहीं नहीं मिल रहा था। उसमें एकाम्र कानन में, जो भुवनेश्वर है उड़ीसा में, उसके एकाम्र कानन कहते हैं, वहां पर बैठकर शिव जी, एक दिन घटना क्या हुआ, नारद जी आए, कहा? कैलाश में। कैलाश में आए, अब ब्रह्मा जी के दोनों भाई बेटे थे, नारद जी भी बेटे थे और शिव जी बेटे हैं। चतुर्थ भागवत में वर्णन है कि शिव जी प्रकट कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से। शिव जी प्रकट ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुआ है। भ्रुकुटी में जो आईब्रू है, क्योंकि जब इन्हें पहले ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र सृष्टि करना चाहते थे, 4 कुमार पहले संतान उत्पन्न हुए, मन से उत्पन्न किए उनको। जैसे उत्पन्न किए, उत्पन्न करते ही उनकी इच्छा हुआ कि मेरे पुत्र क्या करे, संसार वृद्धि करें। 4 कुमार जो है बच्चे की तरह रहते हैं, अभी भी रहते बच्चे की तरह। तो उन्होंने कह रहे, ब्रह्मा जी कहे कि आप सृष्टि बढ़ाओ, संसार सृष्टि बढ़ाओ। कि तो 4 कुमार मना कर दिए, नहीं हम भजन करेंगे, हमें कोई सृष्टि में भागने नहीं। इनको मना करने से ब्रह्मा के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध उत्पन्न होने से उनकी भ्रुकुटी, जब क्रोध उत्पन्न होता, सब जो है मुंह में उसको दिखाई देता है। जिस क्रोधी है, जिसका क्रोध है, वो मुंह में दिखाई देता है। तो उन दोनों आईब्रोस उनको जो है हाँ क्रोध पर दिखाई दे रहा, मैंने संकोच होने लगा, क्रोध उत्पन्न हो गया, लाल हो गए। क्रोध होने से हाँ उस समय एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उनका हाँ रुद्र, शिव जी प्रकट हुए उनके क्रोध से। तो ब्रह्मा जी भ्रुकुट से कौन उत्पन्न हुए? शिव जी उत्पन्न हुए।
और उनकी जब सृष्टि चक्र के लिए ब्रह्मा जी कहे कि सृष्टि करो, सब भूत पिशाच की सृष्टि कर दी, तो फिर ब्रह्मा जी कहने आप भजन करो, छोड़ो छोड़ो आप बहुत कर लियो, अब नहीं चाहिए, आप क्या करो, भजन करो। उनको भजन करने के लिए भेज दिए। अब भजन कर रहे थे, भजन में तल तो प्राप्त कर लिए। तो शिव जी दो प्रकार, जैसे ब्रह्मा जीव कोटि के होते हैं और विष्णु कोटि भी होते हैं, भगवत कोटि के होते हैं और जीव कोटि के होते हैं, उसी प्रकार शिव भी जीव कोटि के होते हैं और शिव भी भगवत कोटि के होते हैं, दो प्रकार कोटि के होते हैं। ये वर्णन है जैव धर्म में। तो शिव जी हम ये कह रहा था कि कैलाश में एक बार घटना यह हुआ, कैलाश में पार्वती और शिव जी ध्यानस्थ थे और पार्वती थी और नारद जी पधारे थे। ना शिव जी थे नहीं, शिव जी कहीं यात्रा में थे, मैंने कोई स्थान पर भक्त सम्मिलन भक्त में कथा कर रहे थे, कैलाश में नहीं थे। तो उसी समय शिव नारद जी पधारे। नारद जी पधारे तो नारद जी इस टाइम में पधार के तो देवर लगते नारद जी, तो पार्वती उनको सुस्वागत किया, बैठाया। अब पूछने लगे नारद जी कि देवी सब घर गृहस्थी ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारा क्या कमी है? अच्छा, क्या आपको शंभु सब बात बताते हैं आपके? हाँ हाँ सब बात बताते हैं, हमारा पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं है, ऐसे संसारी की तरह नहीं हमारा झगड़ा। तो सारी बात तो होता है आप लोगों का, हाँ हाँ क्लियर बात होती है। तो आप ये एक बात बताओ, ये शिव जी जो है ये मुंडमाल धारण करते हैं, है ना? ये मुंडमाल धारण किसका खपड़ी है, किसका सिर है, ये बताते हैं, बताएं आपको? बोले नहीं ये तो बताया नहीं मेरे को। अरे ऐसा बात कैसे बता रहे हैं? हाँ ये पूछा कभी? नहीं पूछा मैंने, और कब बताया नहीं? तो आपको बताया नहीं मीन्स कुछ छिपा के रखे हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा भड़का दिए पार्वती को। तो जैसे ही ये थोड़ा सा मजाक कर लिए तो पार्वती हैरस हो गई, क्योंकि वो कह रहे थे कि शंभु सारे बात बताते मेरे को, कोई बात नहीं जो बताते सब कुछ बता, ये तो बताए नहीं। तो हैरस हो गई नारद सामने। तो नारद इस प्रकार थोड़ा सा उसको हाँ चिंगारी डालकर चल दिए, नारायण नारायण कहते हुए चल दी। तो शिव जी आए, पार्वती उठ गई, आज मैं हैरस हो गया। अरे ऐसे देवर के सामने हैरस होना कितना बड़ा खराब है भाभी के लिए, बड़े लज्जा बुद्ध हुआ उनको, और इसलिए बहुत क्रोधी हो गई। अने कुछ शिव जी आए, कुछ तो ऐसे तो जाते समय बड़े पसंद लग रहे थे, अभी क्या हो गया? कुछ कोई नन्ना आते समय प्रणाम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कहने रहे, शांत बैठिए, लग रहा है कुछ हुआ है। अपनी और शिव जी पूछने लगे क्या हो गए देवी आपको? कुछ बेल बोल रहे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हम दोनों के बीच में वार्तालाप, झगड़ा कोई विषय ही नहीं है, आप ऐसे कैसे लग रहे हो, इतना क्रोधी लग रहे हो, ऐसा ये क्यों आपके स्वरूप ये हो रहा है? कोई आया था क्या? मैं जाने के बाद उन्हें बोले हाँ हाँ नारद जी आए थे। नारद जी आए थे? हाँ हाँ हाँ।
शिव जी समझ गए, शिव जी समझ गए। अरे नारद जी आए थे तो कुछ तो कांड होगा, कुछ तो होगा। तो बोले बोलो क्या हो गया। तो पार्वती बोली देखो सारे बात तो समझाते हो, सारे बात तो बताते हो, इतना पुराना शास्त्र सभी सुना आपसे, हाँ कभी नहीं कहा कि ये जो खपुड़ी सब धारण की हो, मुंडवाना धारण की हो, किसकी मुंड है। अरे बाप, अरे बाप। शिव जी बोले नाराज जी के काम दूसरा काम किसी का होगा नहीं। ने कहे देखो देवी ये आपका खुपड़ी है, ये जितने मुंडवान में धारण किया हम, ये मुंडवान आपकी ही सिर है, आप ही आपकी सिर को मैं धारण किया हूं, क्योंकि आपको प्यार करता हूं, आपको स्नेह करता हूं, इसीलिए क्या करता हूं, इसको खुपड़ी की धारण किया हूं। पार्वती चकित हो क्या रही है, मेरे खुपड़ी सब इतने। शिव जी कहे कि देखो आप मरते हो, मैं नहीं मरता, क्योंकि मैं अमर कैसे बना, मैंने भागवत पढ़ता हूं, भागवत सुनाता हूं, इसलिए मैं अमर हूं। भगवान को 24 आवर्स में स्मरण करता हूं, इसीलिए मैं नहीं मरता। कि तो आप मरते हो, एक आप पर स्नेह है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस खोपड़ी की धारण किया। तब तो पार्वती समझ आ रहे, अरे मेरे को तो बहुत प्यार करते हैं ये भी मेरे मरने के बाद भी मेरा खोपड़ी को ये अपने गले के माला अगर पे इतने प्यार करते हैं मेरे को। बोले आप मरते नहीं, मैं मरता हूं, मैं कैसे अमर हूं, मैं कैसे अमर होऊंगा। शिव कहे भागवत सुनोगे तो अमर हो जाओगे। तो फिर मेरे को सुनाओ। बोले एक एकांत स्थान चलेंगे, एकाम्र। हाँ जब आप भगवान काशी को नाश किए, अब दसम का भागवत सुनोगे, कृष्णा बुक में प्रपात दिए, काशी के नाश किए, काशी में विराजते थे शिव जी, कैलाश काशी में विराजते भी थे। तो काशी जब नाश कर दिए सुदर्शन द्वारा, काशी राज नष्ट की और काशी नगर की जला दी भगवान ने, तो शिव जी कह रहे मैं तो यही निवास करता था प्रभु, और आप जो है ये नगर की जला दी, मैं कहाँ निवास करूं। तो भगवान शिव जी को भगवान ने कहे शिव जी को, कृष्ण ने कहे कि आप क्या करो, भुवनेश्वर एकाम्र कानन में ही रहो। तो एकाम्र कानन में बैठकर हाँ शिव जी ने क्या सुनाए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाए। किसको सुना रहे थे, पार्वती को अमर करने के लिए सुना रहे थे। तो पार्वती सुन रही थी, किंतु भागवत जो है अमल पुराण है, इसलिए हाँ सबके कान में प्रवेश नहीं करता है। और पार्वती को शिव जी सुना रहे थे, किंतु जो पिएगा, जो स्मृति धारण करेगा वही तो अमर होगा। तो पार्वती क्या हो गई, और इतने चरित्र में जो है सृष्टि लीला चल रहा था द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में, तो होश हो गई। उसी समय ये तोते के रूप में है सुखदेव गोस्वामी थे, तोता जो राधारणी पैरट तोता था, वो ढूंढते हुए घूमते हुए ढूंढते हुए और कहाँ कथा सुन रहे, क्योंकि कथा बिरला व्यक्ति, भागवत कथा कौन कसता है, भक्त भागवत और शास्त्र भागवत, हाँ दूर भागवत द्वारा हाँ जी को रस महाप्रभु देने आए हैं। भक्त भागवत और
शास्त्र भागवत। तो भक्त भागवत शिव जी तो है, शास्त्र भागवत शिव जी कह रहे हैं। तो उसको सुनने के लिए जो तोते के रूप में थे सुखदेव गोस्वामी, घूमते 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 एकाम्र कानन के वो आम के पेड़ के ऊपर आके बैठे। एकाम्र कानन एक आम की पेड़ था जिसके नीचे शिव जी बैठे और पार्वती सुना रहे थे कि पार्वती, शिव जी कथा करते होते अपना आंख मूंद कर कथा कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो है आवेश में कृष्ण लीला दर्शन करते हुए आवेश में कथा कर रहे हैं। और शिव जी, पार्वती अपने आवेश में पड़ गई, अपनी नींद के आवेश में पड़ गई और ये कथा आवेश में चलता गया कि जब अध्याय समाप्त होता हूं मारती थी पार्वती, हाँ सुना, किंतु हुआ क्या, जब दूसरा स्कंद समाप्त होते ही पार्वती सो गई। तो तोते गृह में सुखदेव बैठे थे, वो सुन रहे थे। सुनते सुनते देखे कि पार्वती सो गई तो कथा बंद हो जाएगा, अध्याय समाप्त हो रहे, हूं मारने रहे, तो वो हूं मारने शुरू कर दिया। तो ऐसा कथा 12 स्कंद कथा तक पूरे सुखदेव गोस्वामी सुन लिए तोते के रूप में। तो शिव जी का जो आवेश समाप्त, भागवत समापन हो गया और आवेश के बाद जो बाह्य शुद्ध बुद्धि हुई, देखे पार्वती लेट ही गई है, सो गई है और वो सुने तो हूं कौन मार रहा है। तो चारों देखने लगे, ये तो सोई हुई है, कौन हूं मार रहा है। देखे कि हाँ क्या देखे कि तोता बैठ के सुन रहा है और वो ही मार रहा था हूं। तो उसे पीछा किए शिव जी, बहुत पीछा किए, इतने पीछा किए, उड़ते उड़ते वो कहाँ चले गए जो तोते के रूप में सुखदेव गोस्वामी थे, वो बद्रीनाथ चले गए। सरस्वती नदी के तट पर जो व्यासदेवी की पत्नी बातिका जम्भाई ले रहे थे, मीन्स हाँ मैंने थोड़ा सा बातिका जो है बाटिका जो है जम्भाई ले रहे थे, मीन्स थोड़ा सा मुंह खोल के हवा ले रहे थे। तो शिव जी इसको पीछा करते हुए दौड़ते हुए आ रहे थे। सरस्वती नदी तट पर उनकी आश्रम थी व्यासदेव की, अभी भी सरस्वती नदी तट पर उनकी गुम्फा है, व्यास गुम्फा। तो वहीं पर जम्भाई ले रहे थे, तुरंत सुखदेव के रूप में जो तोते के रूप में थे सुखदेव गोस्वामी, वो क्या हो गया, उनके मुंह के अंदर घुस गए। तो शिव जी तो त्रिशूल उठा के मारने के लिए भाग के आ रहे थे, देखे कि स्त्री है और दूसरा व्यासदेव की पत्नी है, इसलिए क्या किए, छोड़ के चले गए। जान गए कि ये पात्र है, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, व्यासदेव की पत्नी है। तो इसलिए कहे कि अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति, क्योंकि ये मेरे मुखारबिंद से सुनना है, इसलिए सुखदेव तक पक्का सुना है, ये जानता है भागवत और मैं जानता हूं। व्यास से बेटी न बेटी बा, व्यासदेव जानते कि नहीं जानते पता नहीं। जब तक, ऐसा हमें वैष्णवाचार्य कहते हैं, जब तक व्यासदेव नाराजी संग प्राप्त नहीं किए तब तक व्यासदेव भागवत नहीं जानते थे। पुराण सब जानते थे, भागवत नहीं जानते। मीन्स क्या है, जो एसेंशियल ऑफ ऑल वेद और शास्त्र, इसको नहीं जानते। भक्त संग के बिना कोई भागवत को समझ नहीं सकता। इसीलिए महाप्रभु कहे, जा भागवत पढ़ो वैष्णवेरो स्थाने, एकांतवास करो चैतन्य चरण। वृंदावन सागर कहते हैं चैतन्य भागवत में। भागवत शास्त्र भागवत समझने के लिए भक्त भागवत संग एकांत अवश्य। भक्त भागवत संग बिना कोई शास्त्र भागवत को नहीं समझ सकता। तो इसी प्रकार जो है शिव जी भक्त भागवत में बहुत श्रेष्ठता है ना, श्रेष्ठता है। और शिव जी इतने करुणामय स्वरूप है। हाँ, आप सभी अष्टम स्कंद भागवत में सुने होंगे। हाँ, समुद्र मंथन कथा। समुद्र मंथन जो है जीव के कल्याण के लिए, देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन किए और भगवान 4 स्वरूप में वो समुद्र मंथन में भाग लिए। कच्छा रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, अजित के रूप में
और धन्वंतरि ग्रुप में, और लास्ट में मोहिनी रूप हुए। 5 अवतार उसी प्रसंग में हुए। और जब मंथन हुआ तो सर्वप्रथम क्या निकला? लक्ष्मी मिली और अस्वस्थ मिले, सब मिले, लेकिन तो उसमें जहर भी प्राप्त हुआ। तो इतने जहर विकराल था कि सभी देवता सभी राक्षस जल रहे थे। कि करुणामय शिव जी, हाँ, उनको जब बुलाए नहीं थे वो देवता, वो इसमें आए नहीं थे, किंतु सभी देवता जाकर क्या किए? प्रार्थना किए, सभी राक्षस प्रार्थना किए शिव जी को कि बचाइए बचाइए बचाइए, विकराल जहर से हमको बचाइए। किंतु भगवान क्या किए? शिव जी सब समर्थ हैं। शिव जी क्या किए? वो जहर को अंजलि भर के पी लिए। पीकर वो क्या किए? सभी जीव को दुख मिटाने के लिए, क्योंकि संसारिक सब जीव जल रहे थे उससे, दुख से, जहर की जो दुख से, हाँ, वो जहर को खुद पान किए। किसके लिए? जीव की कल्याण के लिए, जीव के मंगल के लिए वो जहर को पिए। और पिए तो क्या किए? नीलकंठ में रख लिए, क्योंकि वो जानते हैं ये जहर बड़े विकराल है, हाँ, बहुत विकराल है, और ये मेरे प्रभु मेरे हृदय में निवास करते हैं। जब मैं इसको गर्भस्थ कर लूंगा, पेट के अंदर डाल दूंगा, तो क्या होगा? ये जब जाएगा तब मेरे प्रभु कष्ट होगा। इसलिए वो जहला विष को क्या कर दिए? अपने कंठ में नीलकंठ बने, हाँ, नीला हो गया। जब वो जहर को उन्हें पिए, पीने के बाद कंठ कैसा हो गया? नीला नहीं था, ये जहर के प्रभाव से क्या हो गया? नीला हो गया, नीलकंठ बने। और जहर की प्रकोप को इतना था कि बहुत ही जहरीला। इसीलिए हाँ, भगवान उनकी इस कृत्य को देखकर बड़े प्रसन्नता हुआ भगवान को। और गंगा महारानी को स्वयं भगवान ने उनके सिर पर रखना चाहे, चंद्रमा को रखे, हाँ, चंद्र शीतलता देता है, गंगा शीतलता देती है, क्योंकि इतने जहर पिए हैं तो शीतलता चाहिए। और उस साथ साथ में सांप दिए, हाँ, सांप के जो है, जो फण में, हुड में तो जहर है, किंतु उसके पीछे नीचे भाग में, नीचे भाग से आपका बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। इसीलिए शिव जी को ठंडा देने के लिए, कि उनके इतने जहर पिए हैं, हाँ, जहर पीने के कारण से उनकी गला जलता है। धीरे शिव जी जो सांप धारण किए, गले में सांप रखते, इसीलिए कि सांप की जो है नीचे भाग बहुत ठंडा है, वो ठंडा देता है ना। नागेंद्र हराय, हाँ, उनके माला के रूप में किसको धारण किए? नागराज को धारण किए। त्रिलोचनाय, 3 आंख है उनके पास। तीसरा आंख जो है महाप्रलय समय में, जब भगवान चाहते सृष्टि चक्र बंद किया जाए, तब तीसरा नेत्र खोलता शिव जी का, तब तक नहीं खोलते तीसरा नेत्र। भस्मांग रागाय, हाँ, अपने अंग में सद्य राग को धारण करते हैं। मरा हुआ, हाँ, डेड बॉडी के जला हुआ राख से अपना शरीर को क्या भस्मांग रागा, भस्म को धारण करते हैं अपने शरीर में। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय सर्वदा शुद्ध रहते हैं, नित्य शुद्धाय सर्वदा शुद्ध पवित्र रहते हैं। शिव शब्द उच्चारण करते जीव की मंगल होता है। नित्य शुद्धाय सर्वदा शुद्ध रहते हैं, पवित्र। कैसे पवित्र रहते हैं भाई?
अधिगांबराय, जिनका अंबर, अंबर मीन्स कटी देश, कमर प्रदेश, दिगांबर मीन्स नग्न रहते हैं, इतने भाविष्ट होते हैं शिव जी भगवान नाम भगवान कथा में, पता नहीं चलता उनको कपड़े पहने कि नहीं पहने। दिगांबराय, जिन अंबर दिशा जिसकी कपड़े हैं, दिगांबर, अंबर मीन्स कपड़ा, दिशाएं जिसकी कपड़े होते हैं दिगांबर कहते हैं। तो ऐसे शिव जी जो है, ये सब जो है शिव जी का वेश है, और ये सब महानता के लिए, भगवान की महानता की बुद्धि करने के लिए ये है उनके। वो अपने भगवान कभी मानते नहीं है, और ना वो अपने भक्त मानते, क्योंकि नित्य शुद्धाय, जो शुद्ध सत्य बता रहे, जब जो अंगराग लगाते हैं इस प्रकार, अंगराग अपने शरीर का अंगराग क्या लगाते हैं, भस्म को लगाते हैं अंगराग, अंगराग के रूप में। जबकि भक्ति रसम से कहा जाता है कि डेड बॉडी को देख के भी मंदिर नहीं जाना, अशुद्धि हो जाता है। और सद्य डेड बॉडी की राख को लगाते हैं, वो कैसे शुद्ध हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो सर्वदा शरीर में भगवान की स्मरण करते हैं, इसलिए सर्वदा वो कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे आप सब जानते होंगे, भक्त पद पात करना आसान बात नहीं है, जैसे भगवान ने खुद बताया भगवता में, निर्वाण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिरोक्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययात्। अव्यय तत् प्राप्त करने की जो अव्यय नहीं होता, जब नाश नहीं होती, वो अव्यय पद भक्त पद है। वो कैसे प्राप्त होता है भगवान बता रहे हैं, कौन प्राप्त कर सकता है, उसे क्या योग्यता है, वो सारे लक्षण आपको शिव जी का दिखाई देगा, जो लक्षण भगवान बता रहे हैं। निन्मान मोहा, अम्मानी न मान देना, सबको सम्मान करते हैं, कभी अपने मान की इच्छा रखते नहीं है। कैसे? आप चतुर्थ स्कंद भागवत में जब आप सुने होंगे, दक्ष की सभा में इतने अम्मानित थे शिव जी, भरी सभा में दक्ष अपने ससुर जो है इतना तिरस्कार किया, केवल किसके लिए? ना खड़े नहीं हुए। सर्वत्र सम्मान, सर्वत्र भगवान को सम्मान करते हैं, सभी भगवान सम्मान करते, सबके जीव का सम्मान हो जाता है। कि तो दक्ष देहाभिमानी थे, मेरे को सम्मान नहीं किया, इसी भावना से वो शिव जी को आरोपित कर रहे थे, उछाल रहे थे शिव जी को कि ये जो है ये मटकर लोचन, कह रहे थे ये बंदर की आंखें समान है, अशुद्ध है शिव। बहुत गाली दिए पूरा भरी सभा में अपने ससुर जी, किंतु इतने आत्माराम थे, अपने आम में इतने रमण में थे, ना उनको कोई शब्द भेद किया, ना कुछ रिएक्ट किए, कोई मान अभिमान नहीं रहा। तो सर्वत्र भगवान सम्मान करने वाले व्यक्ति, सर्वत्र भगवत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का इसकी मान मान में कोई भेद नहीं होती, सबको सम्मान वो करते ही है। निर्माण मोहा, उनके संसार कोई मोह नहीं है। किसी पर आसक्ति नहीं, अपना घर बनाए नहीं, पेड़ के नीचे रहते, इतने बड़े जुगीश्वर है, इतने बड़े सुंदर पत्नी पार्वती से पत्नी के पास है, किंतु उन्हें घर नहीं बनाए। इतने वैराग्य, मोह नहीं है संसार पति, कुछ चीज के प्रति। निर्माण मोह जित संग दोषा, संग दोष, सबको संग दोष, सत्संग त्याग वैष्णवाचार,
महाप्रभु कहते हैं असत्संग वैष्णव आचार, असत्संग त्याग करना वैष्णव के आचार है। किंतु इनके संगी कौन है? शिव जी के संगी कौन है? भूत पिशाच। इतने करुणामय शिव जी हैं, उनके संगी में कौन कौन है? भूत पिशाच हैं। जिसको हमें कभी संग देंगे? किंतु शिव जी के दरबार में सभी बेजुड़ ऐसा परिवार उनके है। उनकी वाहन सब देखिए, हाँ जो है कार्तिक के वाहन है मयूर, और गणेश जी की वाहन जो है जो मुसिक, हाँ, और जो है शिव जी गले में सांप रखे हैं, बैल उनकी वाहन है, और पार्वती दुर्गा उनकी, हाँ, शेर उनकी वाहन है। सभी के तो केवल भगवत भक्ति में ये सब स्थित हैं, इसीलिए सभी बेजोड़ भी जोड़ में काम कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इतना तल्लीनता से झाड़खंड जंगल में सभी को भगवान नाम से नचा दिए, उसी प्रकार शिव जी की भगवत भक्ति प्रभाव से ये सभी एक दूसरे जलने वाला, ईर्ष्या करने वाले, खाने वाले, हाँ, उनके परिवार में एक साथ रहते हैं। ये भगवान शिव का शिवत्व है। इसलिए असत्संग जित संग दोषा, ये चित संग दोषा, इनको दुष्प्रभावित नहीं, सब संगीत से दुष्प्रभावित, क्योंकि रहते हुए भी रहते नहीं है। कैसे? न सभी को संग देते हैं, सभी संग लेते नहीं। जित संग आध्यात्म नित्या, 24 घंटा कृष्ण, भगवान राम कृष्ण के नाम को उच्चारण करते हुए, भागवत कथा करते हुए, ये सर्वदा भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। ये सर्वदा कृष्ण को याद रखते हैं, राम की याद रखते हैं। इसलिए आध्यात्म नित्य, आध्यात्मी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, नित्य स्वरूप स्थित रहते हैं। विनिर्मुक्त कामा, काम इनको प्रभावित नहीं करता है। कामदेव खुद आए थे शिव जी के पास, क्या करने के लिए? हाँ, काम उत्पन्न करने के लिए। किंतु क्या हुआ? स्वयं भस्मीभूत हो गए। विनिर्मुक्त कामा, कुमार संभव किताब है, कालिदास रचे हैं। प्रपात बहुत बार इनकी प्रसंग में कहें, स्थित प्रज्ञा बात में प्रपात भगवता में भी कहे, भागवत में भी कहें कि शिव जी के स्थित प्रज्ञ हैं। कैसे भक्त हैं? माने कुमार संभव किताब से प्रपात कहते हैं कि कालिदास रखे हैं कुमार संभव किताब, सांस्कृतिक किताब है वो। तो उसमें कहते हैं शिव जी कार्तिक उत्पन्न करने के लिए देवता क्या करते हैं, पार्वती क्या करती है, शिव जी के लिंग को भी पकड़ती है, क्योंकि जेनिटल पकड़ने से उनके अंदर ही काम उत्पन्न नहीं होता। कितने जितेंद्र है। विनिर्मुक्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, उनकी द्वंद्व नहीं है, किसी में संशयता नहीं है, कोई तत्व में उनको संशय नहीं है, सभी सब व्याख्यान करते हैं। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त रहते हैं। सुख दुख संग ही, सुख दुख में समभाव रहते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा, हाँ, अमूढ़ा, जो संसार की प्रति मूढ़ता, संसार में आसक्ति रहता है, उसको मूढ़ कहते हैं। अमूढ़ा, जिसकी संसार प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वो अमूढ़ा है। तब पदम अव्यय तत्व, अव्यय तत्व पद को प्राप्त करता है, भक्ति पद को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार पूरे श्लोक शिव जी के चरित्र के आप देख सकते हैं, कैसे महान है शिव जी, इनकी महानता कितने बखान है, कितने जो है महान है। और ये क्षेत्रपाल के रूप में भी सभी क्षेत्र में विराजते हैं, जो 7 मुख्य दैनपुरी से लेकर 4 धाम से लेकर सभी जगह व्याप्त रहते हैं। इन वृंदावन धाम में भी सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। सभी जगह हम देखोगे, राधा कुंड, जितने भूतेश्वर, जितने भी शिव जी हैं, सभी जगह में शिव जी बड़े
हाँ क्षत्रपाल रूप में है। और स्पेशली वृंदावन में, हाँ वृंदावन के बारे, शिव जी के बारे में, हाँ शिव जी गोपीश्वर रूप में। वृंदावन बनी पत्ते जय श्याम मौले सनक सनंदन सनातन नादाड्य गोपीश्वर बज विलास्य जुगे द्रपद में प्रीति प्रिय संगीतरांग निरपाधिकम में। ये गोपीश्वर महादेव, गोपीश्वर महादेव, महादेव कैसे गोपीश्वर महादेव। हाँ ये गोपीश्वर महादेव कितने निर्माण माने अभिमान शून्य। शिव जी सुने की पता लगा शिव जी को कि महाराज करने जा रहे भगवान, गोपी बनने की इच्छा हो गया शिव जी को, कैलाश से आया गोपी बनने के लिए। अरे पुरुष वेश में है और गेट कीपर तुलसी महारानी, तुलसी महारानी कई गारे देखो। इसमें सब स्त्रियों के लाभ है, पुरुष तो केवल भगवान कृष्ण है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कैसे प्रवेश करेंगे? और ये जटाजट ये कैसे होगा? ये तो संभव नहीं। आप शिव जी करेंगे, मैं तो बड़े लालसा लेके आया हूं, मैं कृष्ण के साथ नाचना चाहता हूँ, थोड़ा वो रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। तो तुलसी महारानी कहने पर इतने निर्माण होती, ईश्वर होते भी इतने निर्माणता था उनके अंदर, अभिमान शून्य था। तो अपने कहे कि जाओ मानस सरोवर में, हाँ मानस सरोवर में स्नान करके कहो कि मैं कृष्ण गोपी बनना चाहता हूँ, मेरे गोपी बनना है, तब बना दीजिए। तब बोले हाँ हाँ। मानस सरोवर गए, वृंदावन भी मानस सरोवर है। जब हम जाते हैं भांडरी बन जाते हैं, उस साइड में पड़ते हैं मानस सरोवर। स्नान करिए, करके क्या किए, पार्वती श्रृंगार कर दी गोपी वेश में। शिव जी इतने निर्माण मोह थे, उसी गोपी वेश में उन्होंने क्या किए, जाकर हाँ वो प्रवेश किए महाराज में। भगवान कृष्ण देखिए चकित हो गए, एक नया गोपी लग रहा है, क्योंकि भगवान जो उनकी जो डांस है, उनकी जो गोपी के साथ नाच है, ये कुछ अलग है। और महाराष्ट्र में ये नया गोपी जिसको भगवान बार बार देख रहे हैं, राधारानी भी चकित हो गए। अरे मैं तो कृष्ण सबसे मन होकर मेरे को देखते हैं, अरे ये क्या कौन सा नया, बार बार उसको ही देख रहे हैं। सत्तकोटि गोपी के मन को उनको नहीं हम मन हर नहीं पाते, मैं ही कृष्ण का मन को हर लेता हूँ। आज मन, ये कृष्ण के मन किसके पास चले जा रहा है? तो बार बार शिव जी को देखकर भगवान चकित, तो आज कैसे आ गए भोलेनाथ, हाँ ये कभी व्यस्त में। तो भगवान देखे कि अरे इतने निराभिमानी, लक्ष्मी महारानी अभी तक भी तपस्या कर रही मेरे को प्राप्ति करने के लिए, कि तो शिव जी केवल तुलसी महारानी कहने पर भी गोपी वेश धारण कर लिए। हाँ ये गोपी के अनुयायी बनना चाहते हैं, इतने निर्माण मोह, इतने शरणागति है उनकी, इसलिए उनको बैठा है। मेरे देखो ये दृश्य तो देख सकते हो कि तो नाचना संभव नहीं आपको, इसलिए ईशान्य दिशा में बैठाकर उनको कहे कि यही क्षेत्रपाल में आप बैठिए और आपकी ड्रेस डेली गोपी वेश में हुआ, और सभी जगत को आप क्या करिए, आपकी ये गोपी वेश सबको दर्शन होगा। अभी भी डेली गोपी वेश होते हैं शिव जी, डेली शाम को गोपी वेश होते हैं। बंसीपट के पास है गोपीश्वर महादेव, उस महादेव रूप में अभी भी क्षेत्रपाल रूप में बैठते हैं। और इतना तक भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जो वृंदावन वासी या वृंदावन को धाम प्राप्त करना चाहता है, ये शिव जी गोपीश्वर महा को दर्शन न करे और गोपीश्वर कृपा प्राप्त न करे तो ये वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता, ये आशीर्वाद दिए। और भक्तिनाथ ठाकुर सर्वप्रथम मथुरा में उतरते ही किसको प्रणाम करते थे, गोपीश्वर क्षेत्रपाल गोपीश्वर को प्रणाम करके ही यात्रा करते थे वृंदावन के अंदर। इसी प्रकार जो है बहुत सारे कथाएं हैं, मैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बहुत सारे टाइम भी ले लिया आप लोगों का,
तो यहीं पर विराम देंगे। कहने की तो बहुत सारी चीजें, एक स्तुति इच्छा करता था गाने के लिए, गा सकता हूँ क्या? टाइम है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी गाइए। गाएंगे प्रभु जी। ये शंकराचार्य जी की स्तुति है, शंकराचार्य जी ने गाए हैं, शिव पंचाक्षर सूत्र है ये। तो नागेंद्र हराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंद्र चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुजिताय तस्मिन्काराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाम जबृंदा सूर्याय दक्षाधरनाशकाय शीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभ गौतमार्याय मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रकवयो सलोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय जक्षासुरपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय पंचाक्षर पुण्यं जपठेद सन्निधो शीलमदाप्नोति शिवनसा मुदते। ये शंकराचार्य ने गाए, तुलसीदास भी बहुत स्तोत्र गाए हैं, बहुत सा स्तोत्र है। तो एक स्टोरी मेरे को जस्ट 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा थोड़ा सा। आप जानते हैं सब नरसिंह मेहता कथा? कितने भक्त जानते हैं नरसिंह मेहता कथा? कोई जानता होगा तो बोलिए। यस प्रभु जी। धन्यवाद आपका। जस्ट मैं एक 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा आपका। नरसिंह मेहता बचपन में बहुत छोटी अवस्था में थे, 5-6 साल के, तो उनके घर से टर्चर होकर उन्हें शिव जी के मंदिर में आके 7 दिन तक पड़े रहे। कोई स्तुति नहीं कर रहे थे, केवल पड़े रहे। बच्चे थे, पता नहीं था शिव जी क्या, पता नहीं था, बच्चे ही थे। किंतु 7 दिन जिस विद्या उस दिन पार्वती कही शिव जी को, कि आपकी नाम आशुतोष है, आप केवल कोई पानी चढ़ाने पर तुष्ट हो जाते हैं। ये बच्चा 7 दिन से पूरा फास्टिंग में पड़ा हुआ है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, उसके ऊपर दया नहीं आ रहा आपको? आप इनको दर्शन नहीं दे रहे? तो पार्वती कही, ना शिव जी कहे, अरे ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है। पार्वती पे कुछ भी हो, आपकी शरण में आया है, आपके चरण में पड़ा, अज्ञ है जी, पता नहीं है। आप तो विज्ञ हो, आप तो दया कर सकते हो। तो शिव जी को इतने प्रोत्साहन किया पार्वती ने, इतने कहा उसके सपक्ष में कि शिव जी तैयार हो गए। बोला ठीक है ठीक है, चलो चलो आज हम दोनों चलते हैं। उनके सामने गए और वो तो ऐसा ही संशय स्तर पड़ा था, तो उसको जगाया शिव जी ने और अपने स्वरूप दिखाए। स्वरूप में शिव जी पार्वती दोनों खड़े रहे। उसको समझ नहीं आया, केवल प्रणाम किया, लगा भी बड़े लोग हैं, पता नहीं। शिव जी कहे कि मैं शिव हूं, ये पार्वती है, आपको दर्शन देने आए हैं। बच्चा था, पता शिव क्या पार्वती क्या पता नहीं। तो पार्वती कहे कि इसको कुछ वरदान दो। अब शिव जी कहे ठीक है, आप बताओ कुछ चाहिए आपको, वर मांगो।
शिव जी और बच्चा था वर क्या पता नहीं क्या वर मांगते हैं पता नहीं, किंतु भक्त तो थे। ये पूर्व जन्म में राजा मुचुंग थे, तो प्रीवियस जन्म भी भक्त थे, इसीलिए बोले वर तो क्या पता नहीं मेरे को कि हाँ आप बहुत बड़े लोग लग रहे हो, शिव जी हो, आपको जो प्रिय हो वो मेरे को दो, मैं प्रियता चाहिए मेरे को, आपको प्रिय वस्तु। मांगने तो कैसे मांगने सीखना चाहिए, जब बच्चे थे लेकिन मांगा क्या, आपको प्रिय। तो पार्वती को देखे शिव जी देखे कहना, मैं कह रहा था ना छोटा लड़का समझ रहा था, तो ये ऐसा है, किंतु देखो कितने महान है ये, कैसे महान है। क्या मांगा, मेरे प्रिय चीज मांगा। कैसे दे तुम इसके प्रिय चीज, दे सकता हूं? उन्हें कहे ठीक है आप बहुत बुद्धिमता से मांगे, वो अच्छा बात है। मेरे प्रियतम में नित्य लीला में मैं क्या करता हूँ, राधा कृष्ण जुगल लीला में स्मरण करता हूँ, उनके लिए यहाँ प्रवेश करता हूँ, सबसे बड़ा प्रिय है, इससे बड़ा प्रिय चीज मेरे पास नहीं है। मैं सबसे प्रिय हाँ गोपी स्वरूप में वो शिला को दर्शन करते रहता हूँ। ये तो मैं दे सकता, इसको भजन के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हाँ आप आए हो, आपको ये योग्यता मैं प्रदान करूंगा, कि आपको भजन करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। और ये टेलर दिखा दूंगा आपको, साथ में ले गए शिव जी और पूरे दिखाए, वृंदावन लीला पूरा दिखाए, रासस्थली सब देखे, कैसे गोपी बाल होना सब देखे। देखने के बाद पुनः उनको हाँ इस जगत में प्रत्यार्थ कर। नरसिंह मत इतना बड़ा भक्त, शिव जी के भक्त। सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर महादेव प्रकट हुए। हाँ आप गोवर्धन जाओ, चक्रेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हुए। इतने मच्छर खा रहे थे, सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, तो बड़े विपरीत होकर छोड़ के चले जाऊंगा। शिव जी उनके नाम स्मरण कर, शुद्ध नाम सुनते थे, वही चक्रेश्वर महादेव। आज जब सोचे मन में सोचे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इतने मच्छर खा रहे हैं, कैसे भजन करूं। हाँ उनके शुद्ध नाम से सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न थे, तो तुरंत प्रकट हुए। अभी भी स्थान है, गोवर्धन के तट पर है, गोवर्धन जो मानसिक गंगा साइड में। हाँ शिव जी प्रकट होकर उनको क्या किए, कहे कि आज से इस जगह मच्छर नहीं होगा, आप भजन करिए। अभी तक भी नहीं होता। और भगवान कृष्ण की लीला में जब भगवान ने जो उठाए, जो है गोवर्धन उठाए, वो सब शिव जी चक्र की तरह अपना त्रिशूल घुमा रहे थे, वो पानी की सब हाँ जैसा चक्र भी घूम रहा था, शिव जी भी त्रिशूल को चक्र की तरह घुमा रहे थे, जैसे चक्रेश्वर पड़ा उनका नाम, शिव जी का नाम। भगवान की सेवा में सहायता करते थे। शिव जी का नेक कथा है ना। और हमारे भक्त में भी हाँ, हमारे संप्रदाय में भी हाँ सनातन गोसाई बहुत प्रिय थे। शिव जी डेली दर्शन कर जाते थे, जैसे गोवर्धन डेली परिक्रमा होते, एवं गोपेश्वर को डेली दर्शन कर जाते। आज जब वृद्ध हो गए थे, हाँ जो गोपेश्वर दर्शन कर नहीं पाते थे, तो वृंदावन में लोही बाजार में एक शिव जी की मंदिर है, क्या नाम है भूल रहा हूँ, वो गोपेश्वर महादेव वहीं आ गए थे केवल सनातन को दर्शन देने के लिए। इतना दूर गोपेश्वर को दर्शन नहीं जाना पाते थे। बनखंडी महादेव, उनका नाम बनखंडी महादेव, उसी रूप में आके वहीं बसे, सनातन उसमें दिखाने देने के लिए, दर्शन देने के लिए, इतना प्रिय थे। वैष्णवानंद था शंभु जी, वैष्णव श्रेष्ठ। तो वहीं पर ही विराम देंगे, टाइम बहुत हो चुका है। किसका कोई प्रश्न नहीं होगा शायद, किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और यहीं पर विराम देता हूँ। हरि बोल, 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 बोल, बोल। किसका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरि श्याम बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रणाम प्रभु जी, माता। प्रश्न के लिए महाभाव गौर प्रभु जी ऑलरेडी हाँ हैंड रेस किए हैं, और हरग्रेस पद्मावती सखी माता जी ने भी हैंड रेस एक एक किया है। करके किसी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा महाभाव गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी, जैसे आपने शिव जी के बारे में बताया प्रभु जी, थोड़ा प्रभु जी सदा शिव जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? कैसा सदाशिव उनका? जो है, इनके ही एक्चुअली एकाश रुद्र में शिव जी हैं। एकाश रुद्र में, रुद्र के अंदर शिव जी भगवान है। शिव जी के नाम एकाश रुद्र के अंदर शिव जी है। सदाशिव जी हैं, ये नित्य जगत में यही शिव जी का नाम है, किंतु स्वरूप में भिन्न है। इस प्रकार स्वरूप जो है शिव जी का नित्य सदाशिव के रूप में, चतुर्भुज रूप में सदाशिव रहते हैं। ये वर्णन आपको मिलेगा जैव धर्म में। और जो हमारे ब्रह्मांड की जो पिक्चर है, कैलाश जहां लिखा है ब्रह्मा ज्योति के आगे, जो उसमें कैलाश लिखा हुआ है, ये नित्य जगत में आता है। वहीं पर कौन बैठते हैं? सदाशिव विराजते हैं। वो शंकरषण की विस्तार है सदाशिव, और उनके विस्तार शिव जी। और नित्य जगत में भी इनके स्थान है। और प्रभु जी उनके मतलब उनके साथ मतलब जो उनके मतलब जैसे यहाँ पे पार्वती हैं, तो उनके साथ उसमें कौन है मतलब? उसी स्वरूप है, उसी स्वरूप में ये सब। जैसे पार्वती जिस स्वरूप में है, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है सब। जी वैकुंठ में लक्ष्मी स्वरूपा सब होते हैं। तो प्रभु जी उनके भी एसोसिएट सेम ही है, जैसे यहाँ पे नंदी हैं, और मतलब क्योंकि प्रभु जी हाँ उनका जी, हाँ ज्यादातर जी, सारे सेट है। सारे जो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी को वैष्णव रूप में मानते हैं, वही उस जगत को जाते हैं। जी, तो मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक जगत में वो सदा शिव जी के हैं, और यहाँ पर हाँ मतलब जो है शिव जी के नाम से। हाँ हाँ। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो ये शिव जी सती का और पार्वती का जो लीला चलता है शिव जी के साथ, भगवान शिव के साथ कैलाश पर, तो वो ये ब्रह्मांड के मतलब के अंदर होता है कि वो सदा शिव जो नित्य जगत में है उनके साथ का है? ना ये इस जगत में, शिव इस जगत में। ये सती जी और पार्वती हाँ, ये यही इस ब्रह्मांड। ये कैलाश पे जो शिव जी रहते हैं उनके हाँ, साथ। ये इस जगत में, इस जगत में। और सदा शिव के साथ कौन मतलब? सदा जब नित्य जगत में, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है सभी। जैसे आप चैतन्य चैतन्य पढ़ोगे तो लक्ष्मी की विस्तार देवियां होती है। तो उनके साथ जो रहती है वो लक्ष्मी स्वरूपा रहती है, लक्ष्मी स्वरूपा रहती है। सदा शिव के साथ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। थैंक यू प्रभु जी। हरग्रेस पद्मावती सखी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कुछ अटपटाई है, लेकिन मेरे मन में आ रहा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पूछ लो। ये जैसे आपने बताया कि भगवान शिव जो थे वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, और वो गए वहां, उनके दर्शन देखना चाहते थे भगवान को प्रत्यक्ष। वैसे तो उनके हृदय में रहते ही हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। तो जब यशोदा माता ने दर्शन नहीं करने दिए थे, तो वो आश्रेश्वर महादेव के रूप में जो पर्वत है, पहाड़ है, तो वहां पे आज भी मतलब वो दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे ही हम कई बार सुनते हैं, जैसे हमने मानसरोवर है जहाँ राधा रानी मान करके बैठी हुई हैं, और आज भी वो मान कर रही हैं। तो प्रभु जी हम इस चीज को कैसे समझे? क्योंकि मान तो भगवान ने उनका पूरा कर दिया था, और ऐसे ही भगवान ने अपने दर्शन भी दे दिए थे। तो आश्रेश्वर महादेव आज भी कैसे वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं? इसका को किस तरह से समझेंगे हम? ये लीला विचार में समझ सकते हैं। जैसे हमें
जब किसी प्रसंग को हम लेते हैं और दृष्टि के अनुसार देखते हैं, तत्व विचार करते हैं, आपात विचार करते हैं, 3 विचार होती है। लीला विचार में आशीर्षद इस प्रकार शिव जी आके आस लगा के बैठे थे, उसी स्वरूप में है। जब हमें उनकी गुणगान करेंगे तो भगवान गुणगान होगा। इस प्रकार उनके आस तो पूरा कर दिए कि तो लीला को इस जगत में विकसित करने के लिए, क्योंकि हर चीज चाहे तो भगवान तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि उस लीला को हमें और प्रकाशित करने के लिए और सभी को जानने के लिए, सभी को बताने के लिए, है ना, उसी लीला को उस स्थान में रखा जाता है, हम सबको जानने के लिए, सभी जीव को और व्यक्त करने के लिए इस चीज को इसीलिए रखा गया। समझ में आया? जी प्रभु जी कि मतलब वो ये इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे और जो नए जीव आ रहे हैं तो वो ये समझे कि भगवान आज भी मतलब भगवान शिव हैं, वो आज भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे हाँ, कब हाँ। दर्शन माने होंगे। ऐसा प्रतीक्षा करके रहे और इस प्रकार भगवान ने उनकी आस लीला इस इच्छा पूर्ति की है, इसीलिए वो बैठे हैं इस प्रकार उस लीला को, है ना। ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता, हरे कृष्ण। हरे बोल। थैंक यू हरे माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक हरे है। कृष्णा। सरस्वती आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक वो पूछना था, आप बता रहे थे ना आपने बताया कि जब शिव जी ने वो जहर पी लिया तो आपने वो सांप का कुछ बताया था कि वो ठंडा रहता है क्या पाठ? उनके सांप के जो गले में धारण किए हैं शिव जी, वो सांप के जो है होड़ में तो जहर होता है, किंतु सांप के निचले भाग में बहुत ठंडा होता है, बहुत जैसा ज्वाला होती ना, वो जहर पीने के बाद कंठ ज्वालातीत हो रहा था। भगवान देख रहे थे मेरे भक्त को दुख हो रहा है, तो उसको ठंडक देने के लिए, ठंडा देने के लिए इसलिए सांप को साथ में रखें। सांप जो है, सांप जहाँ रहता है शायद उसकी माने जहर उसके अंदर होता है कि नीचे ठंडा होती है, इसीलिए शिव जी उस सांप को धारण किए। भगवान ने कहे उसको धारण कराए क्योंकि वो मेरे भक्त को कष्ट न हो, वो जीव के लिए कष्ट उठाए ना, इसलिए उसके लिए उनको दुख होना, इसीलिए भगवान ने उसको कहे कि सांप धारण करो। और दूसरी बात ये थी प्रभु जी, जो अभी आपने वो प्रेयर बोली थी, जो स्तुति बोली थी ना, उसका मेरे को फर्स्ट लाइन बता दीजिए, क्या था उसका फर्स्ट? ये शिव पंचाक्षर सूत्र है, शंकराचार्य ने लिखे हैं। हाँ। नागेंद्र हराय तेलोचनाय भस्मांग। ठीक है, नागेंद्र हराय। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। हरे बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बताओ। वो समुद्र मंथन की कथा में बता रहे थे आप, 5 रूप में प्रकट हुए थे, कश्यप, विष्णु, धन्वंतर, मोहिनी, और 5वां क्या था? अजित। अजित। हाँ, ये किस रूप में थे, क्या था? भगवान का क्या नाम? विष्णु स्वरूप में। प्रभु जी उनके नहीं, आप क्या क्या बोले, आप एक बार बोलो। कच्छप, कच्छप, विष्णु, नहीं विष्णु नहीं, 4 स्वरूप, 5 नहीं 4। अजित भगवान विष्णु ही अजित नाम में थे, अच्छा, है ना, और विष्णु अलग नहीं थे। अजित नाम में नाम था अजित, विष्णु स्वरूप में थे, अच्छा विष्णु स्वरूप। हाँ, 4 स्वरूप धारण किए, है ना। हाँ, मोहिनी लास्ट में धारण किए। पहले कच्छप रूप धारण किए ना, पहले अजित, फिर कच्छप, फिर जो है धनवंतरी, फिर बाद में मोहिनी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी पूर्णमासी माता जी के बारे में कुछ बताएंगे क्या थोड़ा बहुत? पूर्णमासी जुगमाया स्वरूप ये भगवान की लीला को विस्तार करने के लिए, बा संयुक्ता वर्धा करने के लिए, बा वो लीला को और पुष्ट करने के लिए ये क्या करती थी? सहयोगिता करती है ना। पूर्णमासी, है ना, जो जुगमाया है भगवान की शक्ति के आधार पर जुगमाया, वही पूर्णमासी के रूप में नाम है उनकी। पूर्णमासी है वृंदावन लीला में, और वो भगवान की लीला को जो है सहायता करती है। जैसा आशीश्वर महादेव को मिलाना था, मिला दिए भगवान कृष्ण से। जब गोपियों की मिलाना है,
गोपाल बाल ग्वाल बालों से मिलाना है कि भगवान लीला को कहाँ का लीला करेंगे, उसको अरेंजमेंट करने में तुलसी महारानी के साथ उनके बड़े करीब रिश्ता है, और उनके साथ वो मिलकर क्या करती है, भगवान को इस प्रकार लीला को सहायता करती है। पूर्णवासी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी मैंने प्रभु जी एक लेक्चर में सुना था, तो हाँ। उसमें बता रहे थे कि ये पूर्णमासी जो हैं ये जो संदीपनी मुनि है उनकी माता हैं, और जो मधुमंगल हैं वो उनके पोते हैं। तो ये ठीक है? ये ठीक भी है, ऐसा कोई खराब नहीं, ठीक है। किंतु जब हमें ये जीव कुटी के होते हैं, जब लीला होती ना, नित्य जगत में आते हैं, और हम जो जीव जुग्य होता है, जो जीव इच्छा करती है कि इस प्रकार मैं सेवा करूं भगवान की, ये दोनों के स्वरूप एकत्र मिला के दिया जाता है ना। जैसे आप सुने होंगे राय रामानंद बारे में बताते हैं कि ये भी पांडव अर्जुन थे, और ये विशाखा सखी भी है ना, सुने ना, पद्मा सखी माता। जी प्रभु जी सुना है। तो उसी प्रकार स्वरूप जो है, स्वरूप में जब हमें गौणगस दीपिका राधा कृष्ण दीपिका से हम पढ़ते हैं, तो अनेक स्वरूप एक साथ आते हैं लीला में, है ना। तो जो इच्छा अनुसार जीव की होती है, इच्छा जो होती है उसके आधार पर जीव को उस स्वरूप में लीला भाग में पार्टिसिपेशन करने के सुजग प्रदान की जाती है। कि तो हम वो उस ब्रह्मांड के लिए अलग ब्रह्मांड अलग लीला होती है। तो कल भेद में, लीला के भेद में अनेक जगह में अनेक स्वरूप दी जाती है। जैसे आपने कहा, सही कहा, गलत ही नहीं कहा, है ना। कि तो वो नित्य जगती लीला, क्योंकि लीला विचार थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, जब तक हमें द्वंद में नहीं, क्योंकि इसकी मैंने एक्यूरेट कहना मुश्किल है कि क्यों ये लीला हुआ, कैसे हुआ और क्यों इसको दिया गया, तो वो इतना नहीं कह सकते, क्योंकि लीला के आधार पर भगवान की अधिकार जीव को दे रहे, है ना। उसको नहीं कह सकते कि ये सांदीपनि मुझे पता कैसा हुआ, वो तो नित्य जगत है, मधुमंगल है ना। कि तो हाँ, वो जीव का इच्छा है कि पार्टिसिपेट करे भगवान लीला में, तो सुजग दिए भगवान ने। प्रभु जी उस लेक्चर में ये भी बताया था, मतलब वो बता रही हूँ कि उसमें क्या बता रहे थे। उसमें ये भी बताया था कि जो पूर्णमासी देवी हैं वो पहले वहां रहती थी मथुरा में संदीपनी मुनि के साथ। तो फिर एक बार नारद मुनि आए तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान की लीलाओं में भगवान की सेवा करूं। तो फिर नारद मुनि ने उन्हें परमिशन दी थी और वो लेके आए थे उनको वृंदावन। तो तब से वो फिर बहुत पूजनीय हो गई थी और सब लोग उनकी बात मानते थे वृंदावन में। मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रही थी कि ये पूरा जो दिया हुआ है तो ये कहीं पे आया है इस तरह का? हाँ जी है, आया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। अच्छा, गर्ग संहिता में थोड़ा बहुत है कि तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में अच्छा दिया है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता। हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे ग्रेस, हिज ग्रेस श्याम कर्ण प्रभु जी सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हिज ग्रेस श्याम कर्ण प्रभु सुमित्रा देवी जैसी कौन है? प्रभु जी मैं माता जी है। हाँ, हाथ रेजिंग के क्या क्वेश्चन है आपकी? मैं क्वेश्चन पूछ लिया प्रभु जी, हमने डाउन कर देंगे। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस श्याम कर्ण प्रभु जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? में शायद शाम को आज आए नहीं, लग नहीं रहा, नहीं आया शायद। दंडवत प्रणाम माता जी हैं प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। रेस्ट ले रहे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रेस्ट ने दो उनको। तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट। क्या हो गया? हाँ, सिर दर्द? वही है, थकान हो जाती। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, सुने दो। हाँ, सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, दवा फवा करूँ तो दूध पिलाओ थोड़ा, है ना। थैंक यू। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, शाम को रेस्ट कर दो, यहीं पर विराम। ठीक है, आप सब धन्यवाद पात्र हैं, हमें थोड़ा बहुत समय ले लिया आप लोगों का आज मैंने,
हृदय से हम प्रभु जी को एक बार धन्यवाद बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 राजधा की देव की जय हो। आप सब इष्टम जन की वांछा कल्पतरुभ्यो पावनेभ्यो नभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की जय। गुरुस्थान श्रीमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।